Today we are going to continue with the grammatical categories, and we have said it is part 2. We'll be learning number, gender, and person. So if you remember in our last session or last lecture, we have discussed that what is grammatical categories including tense, aspect, and mode in Hindi Urdu. In today's lecture, we will study person, number, and gender in Hindi and Urdu. A person is a grammatical category that indicates the participants taking part in a communicative situation. It shows whether the speaker or the listener or someone else is involved in the action or situation being described. Essentially, it helps us understand who is doing what to whom in a sentence. So this is basically idea of every sentence, who is doing what to whom. Beyond marking grammatical relationships, person plays a key role in sentence structure, which is syntax, and the verb conjugation, helping a speaker conveys accurate meaning. It also affects the expression of politeness, social distance, and other socio-linguistic nuances. Thus, the grammatical category of person is fundamental not only for constructing sentences but also for navigating social interactions, politeness, strategies, and cultural norms within a language. Here, I would like to tell you that whenever we learn the society in relation to language and language in relation to society. So it is only a matter of perception whom we are going to learn in what context. In English grammar, person refers to grammatical category that distinguishes the speaker, the person being addressed, and the person or thing being spoken about. So there are three things important. One is a speaker who is speaking, and the second one is the person about whom the speaker is speaking, and the third is the person or thing being spoken about. It determines how pronouns and verbs are used, dividing them into three types. First person, which is a speaker, and first person we know grammatically referring to I or we. Second person, the listener, that is you, and third person, someone or something else or the spoken about is he, she, it, or they. First person, which is a speaker, the first person refers to the speaker or the speakers themselves, the individuals producing the utterances. It expresses the viewpoint of the speaker. So the person refers to the speaker or the speaker themselves. So this is the person who is speaking, and the pronouns is मैं, singular, and हम is plural. It indicates that the speaker is performing the action. लेकिन जो पर्सन है वो खुद एक्शन में इन्वॉल्व है, वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है. अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, इफ यू लुक एट दिस एग्जाम्पल, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ए बुक. अगर प्लूरल हम देखेंगे तो इट इज वी आर गोइंग टू मार्केट, हम बाजार जा रहे हैं. Here the first person is central for expressing personal experience, thoughts, and intention for what he is going to do and what is his intention of going to or performing an action about what. The second person, the addressee, the second person refers to the listener, the individual being addressed. It is used to directly communicate with someone. And the pronouns here is तुम for singular, तुम लोग is for plural. So when even तुम in our society, in our social context, we always even तुम refer to are grammatically considered as plural, but when we add log with तुम, it explicitly referring to the plural only. So here that's why we always, to avoid any ambiguity, हम हमेशा तुम लोग बोलते हैं. Marks the person being spoken to and can reflect politeness or familiarity. So अब यहाँ पे जो हम बात करते हैं politeness की, तो जब आप एग्जाम्पल देखेंगे, तुम भाषा विज्ञान सीख रहे हो,
लाइक तुम लिसानियात सीख रहे हो, यू आर लर्निंग लिंग्विस्टिक्स, या आप भाषा विज्ञान सीख रहे हैं, लाइक यू आर लर्निंग लिंग्विस्टिक्स, तुम लोग भाषा विज्ञान सीख रहे हो, you people or you all are learning linguistics. If you look at this is a social hierarchy, like referring to tum, aap and tum log. The second person is important for interaction, instructions and social relationship in language use. So in our language, like in Hindi, Urdu, that social status is very important. So we have this. In English, you have only you, but in Hindi, we have three, and sometimes we refer to tu, but here we are referring to tum, aap for politeness, and tum log, referring to the second person. Then, coming to third person, the third person refers to individuals or entities that are neither the speaker nor the listener. It is used to talk about others. अब ये होता है, न तो वो स्पीकर होता है न लिसनर होता है, वो हम किसी और के बारे में बात करते हैं, जैसे प्रोनाउन वो है. और डिस्क्राइब एक्शंस, स्टेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर्स. अगर हम मिसाल के तौर पे देखें इसको, फॉर सिंगुलर, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है. इफ इट इज प्लूरल, वो किताबें पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग books. So third person is essential for narration, reporting, describing events beyond the immediate conversation. तो यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है, बट हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं. दैट इज रेफरिंग टू थर्ड पर्सन, वेदर इट कुड बी ए सिंगुलर और प्लूरल. सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है समझना. अब आप इन तीनों को देखें कि हिंदी उर्दू डिस्टिंग्विशेस फॉर्मली इन सेकेंड पर्सन तू, तुम और आप. तू इज इंटीमेट इनफॉर्मल, तुम इज फेमिलियर, आप इज फॉर्मल पोलाइट. तू इंटीमेट क्यों बोलते हैं? तू हम कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम गॉड से, भगवान से हम अब जब कोई दुआ मांगते हैं तो हमारी इंटीमेसी बहुत ज्यादा होती है कि हम हमेशा बोलते हैं, हे भगवान या अल्लाह तू हमें इस तरह से ऐसा कर दे. तो इसी को इंटीमेसी कहते हैं. या जब कोई बच्चा होता है तो हम उसको इंटीमेट, तू ऐसा मत कर, तू ये कर ले, तू वो कर लो. तो ये सब चीजें जो है तू एड्रेस के लिए होता है, इंटीमेट के लिए होता है, इनफॉर्मल के लिए होता है कि हम अपने पीयर्स को, दोस्तों को भी हम कभी तू करके तू कहाँ जा रहे हो थे. तो ये सब हम इंटीमेट रिलेशन को रेफर करता है. उसी तरह तुम है वेरी फेमिलियर, जब हम तुम बोलते हैं एक फॉर्मल सिचुएशन में बोलते हैं. उसी तरह आप बोलते हैं वेरी फॉर्मल और पोलाइट सिचुएशन में. रिस्पेक्टफुल होता है जब हम अपनी सोसाइटी में इसको यूज करते हैं. तो रिस्पेक्टफुल पर्सन के लिए, अपने से बड़ों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए हम हमेशा आपका इस्तेमाल करते हैं. पर्सन और इन प्रोनाउंस, the person is most commonly reflected in pronouns, words like I, you and he, she, it or they. मैं, तुम लोग, आप और वो, which directly identify the participants. It is also expressed in verb forms, where verbs often change their endings or forms to agree with the person of the subject. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जब हम पर्सन के बारे में बात करते हैं, मैं है, तुम लोग, आप और वो, तो इसके साथ वर्ब फॉर्म्स भी जुड़ा हुआ होता है. वर्ब ऑलवेज एग्री करता है हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउंस क्या है. तो अगर आप इन एग्जांपल्स को देखें, मैं जाता हूं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई गो. तुम जाते हो, सेकेंड पर्सन सिंगुलर तुम जाते हो यू गो. वह जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही गोज. तो अब वो वर्ब हमेशा, जैसे मैं के साथ हूं हो गया है, तुम के साथ हो गया है, वो जाता है, ही के साथ है हो गया है. तो इसी तरह वर्ब जो है कंजुगेट करता है, ऑक्सिलरी वर्ब. उसी तरह मेन वर्ब अकॉर्डिंगली चेंज होता है. जाता फॉर मैस्कुलिन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, जाते फॉर सेकेंड पर्सन सिंगुलर, अगेन जाता फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर. उसी तरह अब जब देखेंगे हम जो सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें पर्सन का क्या रोल होता है. तो पोलाइटनेस एंड फॉर्मेलिटी अफेक्ट सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस. अब एग्जाम्पल देखें, जैसा कि मैंने कहा
कि क्लोज फ्रेंड, यंगर सिबलिंग्स या जो बहुत ही इंटीमेट है उसके साथ हम तू लगाते हैं। और जैसे तू कहाँ जा रहा है, तो इंटीमेट रिलेशन शो करता है, क्लोजनेस शो करता है, अफेक्शन शो करता है। लेकिन तुम जब हम बोलते हैं तो ये थोड़ा सा फेमिलियर होता है कि हम अपने पीयर्स के लिए बोलते हैं, इनफॉर्मल सिचुएशन में बोलते हैं, तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, या आप जब हम बोलते हैं तो एल्डर्स के लिए बोलते हैं, वेरी फॉर्मल सिचुएशन होता है। या जब हम किसी अननोन पर्सन से कन्वर्जेशन करते हैं, बात करते हैं, तो हम हमेशा आप से रेफर करते हैं। आप इज ए पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टर्म भी हमें हमारी सोसाइटी में इसे माना जाता है। तो तू, तुम एंड आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट तरीके से हम यूज करते हैं। अब वर्ब का इसमें क्या रोल होता है, तो वर्ब एग्री विथ पर्सन एंड नंबर। इन हिंदी उर्दू the concept of person is a fundamental grammatical category that significantly influences verb conjugation. verb conjugation कहते हैं कि verb changes को, किस तरह verb अपने आप को change करता है subject के relation में आकर के, in relation with the subject. It identifies the position of the subject in communication. Communication हो, चाहे oral कन्वर्जेशन हो या रिटन टेक्स्ट हो, कभी भी होता है तो वर्ब हमेशा एग्री करेगा सब्जेक्ट के साथ, वेदर द स्पीकर रेफर टू देमसेल्फ रेफरिंग टू फर्स्ट पर्सन, या स्पीक्स टू समवन डायरेक्टली सेकंड पर्सन, या टॉक्स अबाउट अनदर इंडिविजुअल और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, जिसको हम ही, सी और इट से रेफर करते हैं। द फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंजेज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। एज आई सेड, क्या सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चेंज होता है, एंड दिस वेरिएशन इज फर्दर अफेक्टेड बाय नंबर, सिंगुलर है या प्लूरल है, जेंडर मैस्कुलिन या फेमिनिन है, एंड द लेवल ऑफ पोलाइटनेस और रिस्पेक्ट। सो ये चीजें एग्रीमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है नंबर के हिसाब से, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है जेंडर के हिसाब से, और रिस्पेक्ट या डिग्री ऑफ पोलाइटनेस क्या है। तो ये चीजें एग्रीमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है हिंदी उर्दू में, तो ये हमें समझते जाना होगा। अगर मिसाल के तौर पे देखें, वर्ब फॉर्म्स डिफर व्हेन यूज्ड विथ मैं जाता हूं, आई गो फॉर फर्स्ट पर्सन, तुम जाते हो, यू गो फॉर द सेकेंड पर्सन, वह जाता है, ही सी गोज फॉर द थर्ड पर्सन। अब आप यहां देखें तो यूज ऑफ सेकेंड पर्सन प्रोनाउन सच एज तू, तुम एंड आप indicates varying degree of familiarity and respect, which are reflected in the corresponding verb agreement. So therefore, understanding the category of person in Hindi Urdu, verb is vital for constructing grammatically correct sentences, conveying meaning accurately, and maintaining appropriate social relationship in communication. अब हम यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखा रहे हैं। इस चार्ट दिखाने से पहले हम चाहते हैं कि आपको हम एक वो दिखाएं कि हमारा जो ये नेविगेशन होता है कि हम चार्ट को किस तरह कंप्लीट करके आपको बताएं। तो हम एक चार्ट दिखा रहे हैं आपको, ये सारा नंबर, पर्सन, जेंडर एग्रीमेंट आपको क्लियरली डिफाइन हो जाएगा। तो आप ये देखिए जो हम ड्रॉ कर रहे हैं डायग्राम, ये कितना आपके लिए आसानी पैदा करेगी। तो जब हम नॉन बोलते हैं तो नॉन में या तो मैस्कुलिन नॉन होता है या हम फेमिनिन नॉन बोलते हैं, क्लियरली होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम आपको समझाने के लिए एक चार्ट बना दे रहे हैं जिससे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। हम इसको बोलते हैं या तो ये मार्क्ड मैस्कुलिन नाउन होता है, या हम इसको अनमार्क्ड मैस्कुलिन नाउन बोलते हैं। मार्क्ड मैस्कुलिन क्या होता है कि ये मार्क्ड होता है, किससे मार्क होता है, आ से मार्क होता है। जैसे लड़का है, केला है, बेटा है, तो ये मार्क्ड मैस्कुलिन नाउन। और इसमें हम कह सकते हैं कि ये है सिंगुलर, रेफरिंग टू
सिंगुलर मैस्कुलिन। तो ये सिंगुलर से अब इसी को हम जब हम प्लूरल बनाते हैं मार्क्ड मैस्कुलिन नाउन, तो इसको हम फिर या तो ये सिंगुलर होगा या ये फिर प्लूरल होगा। तो जब सिंगुलर से हम प्लूरल बनाते हैं तो क्या होता है कि जो ये आ है ये इसको हम यहां पे चेंज हो जाता है ए में। तो अब अगर ये लड़का है तो ये चेंज हो जाएगा प्लूरल में लड़के। सो ये जो मात्रा आता ये ए में चेंज हो गया, ये यहाँ पे ये दिखा रहा है और ये दिखा रहा है। तो अब इसको समझ लीजिए। उसी तरह केला केले हो गया, बेटा बेटे हो गया। अब इसमें ये होता है दूसरा जो इसका ये है कि हम इसको अनमार्क्ड क्या बोलते हैं। अब जैसे अनमार्क्ड में हम दोस्त है या शहर है। अनमार्क्ड का मतलब होता है कि वो नाउन जिसकी एंडिंग अदर देन आ हो, आ के अलावा कोई भी एंडिंग हो वो इस कैटेगरी में आएगा। तो जैसे दोस्त है, शहर है, तो इसका किस तरह से हम सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं, सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं, तो इससे आपको पूरा कंप्लीट आइडिया हो जाएगा। सिंगुलर में जैसे दोस्त है तो इसमें जीरो होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। सिंगुलर और प्लूरल में दोस्त का दोस्त ही रहेगा, ये फ्रेंड्स हो जाएगा। जब प्लूरल कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि हम सिंगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं या प्लूरल कर रहे हैं। उसी तरह शहर का प्लूरल भी शहर ही हो जाएगा। ये सिटीज हो गया, ये सिटी हो गया आपका, ये फ्रेंड हो गया सिंगुलर। तो अब आप देखिए ये कंप्लीट चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये आपको बता देगा कि एक नाउन है मैस्कुलिन में मार्क्ड होता है और अनमार्क्ड होता है। मार्क्ड इसलिए बोलते हैं कि आ से मार्क होता है, वो नाउन जिसका एंड में आ लगा हो उसको हम मार्क बोलते हैं। तो इस तरह से कर करके जो है ये सारी चीजें हम बनाते हैं। उसी तरह अनमार्क्ड वो नाउन जिसके एंड में आ नहीं लगा हो, तो इसको हमें याद करना पड़ेगा कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन इसका प्लूरल बनाने का तरीका ये है कि इसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो अनचेंज होता है सिंगुलर एंड प्लूरल में। तो ये सिर्फ एग्रीमेंट जो होता है कॉन्टेक्स्ट बताता है कि जब आप ग्रामेटिकल एग्रीमेंट बनाएंगे तो हाउ इट इज गोइंग टू एग्री विद द वर्ब। तो अगर आप दोस्त सिंगुलर यूज होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और दोस्त एज ए प्लूरल होगा तो वर्ब भी उसी हिसाब से एग्री करेगा नंबर एंड जेंडर में। उसी तरह अब आइए आप फेमिनिन नाउन को हम आपको दूसरे स्लाइड में चल के बताते हैं कि हमने जैसे बताया नाउन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। फेमिनिन में भी दो तरह के होंगे, marked feminine noun and unmarked feminine noun। अब ये मार्क किससे होता है? ये यहां पे मार्क होता है ई से, सच बताया। मिठाई है, लड़की है या रोटी है। तो अब इसके एंड में क्या है? ई है, ई है, ई है, ई है। तो इसको हम मार्क कहते हैं क्योंकि वो नाउन जनरली जिसका एंड ई पे होता है लॉन्ग वॉवेल पे, तो उसको हम फेमिनिन नाउन बोलते हैं, वो मार्क्ड होता है। अब इसको भी हम या तो ये नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अब इसको हम सिंगुलर कैसे बनाएंगे और प्लूरल क्या होगा? इसका जैसे मिठाई है, या मैं उर्दू भी लिख देता हूं ताकि जो लोग उर्दू बैकग्राउंड के उनको भी समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये ई है पहला स्टेप, ये
हो जाता है शॉर्ट, ये हो गया। अब प्लस इसमें हम या जोड़ते हैं प्लूरल बनाने के लिए। तो ये एक स्टेप था, पहला स्टेप है। लॉन्ग ई जो है शॉर्ट ई हो जाता है, उसके बाद ये जोड़ते हैं। अब जैसे मिठाई है तो यहाँ पे हम मिठाई और ये शॉर्ट ई और ये या मिठाइयाँ कोई भी है। जैसे रोटी है तो ये हो जाएगा शॉर्ट लेफ्ट साइड से रोटियां। तो ये सिंगुलर एंड प्लूरल हो गया। अब जैसे अनमार्क्ड फैमिली नाउन है, तो अनमार्क्ड फैमिली नाउन में क्या, एनी नाउन ends on other than e long e comes under this unmarked feminine category। लेकिन इसके लिए हमें पता होगा कि जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे अभी, तो उसमें वो कैसे पता चलेगा कि अनमार्क्ड फैमिली नाउन है। तो उसके लिए हमें ग्रामर का सहारा लेना पड़ेगा, डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ेगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो है। अभी चूंकि हम मिसाल दे रहे हैं मालूम करके, तो ये हमें पता चलता है। जैसे किताब है, मेज है या औरत है, तो इसका हम सिंगुलर से, इसके भी हम सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। सिंगुलर और प्लूरल बनाने के इसमें हमने देखा, जैसे मार्क्ड में था कि अनमार्क्ड मैस्कुलिन नाउन में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम ऐड करते हैं। जैसे हमने किताब लिखा, तो हम जो सफिक्स ऐड करते हैं यहाँ पे ए करते हैं, नेजलाइज्ड ए होता है, ये हर कॉमन है, सब में यही ए करेंगे तो हमें प्लूरल मिल जाएगा। तो हम ये हो जाता है किताबें, बुक्स। तो ये फेमिनिन अनमार्क्ड नाउन में हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने का ये तरीका होता है, ए हम ऐड करते हैं। उसी तरह मेज है तो ये मेजें हो गया, टेबल्स। और औरत है तो ये औरतें हो गया, वुमेन। तो इस तरह से ये सब चीजें जो है बहुत टेक्निक से समझने में आसानी होती है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हम किस तरह इसको सिंगुलर और प्लूरल हम बनाते हैं। ये चार्ट, इस चार्ट को हमने उसी तरह कंप्लीट तौर पर जो है ये बना दिया है आपके लिए टू अंडरस्टैंड, सारे एग्जाम्पल्स के साथ वहां हमने ये समझा दिया है कि किस तरह बनता है। अब ये देखिए यहाँ हमने पूरा डिफाइन कर दिया है कि मार्क्ड मैस्कुलिन नाउन में आ होता है, लड़का है, कमरा है, जूता है, उसको सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। लड़का है तो लड़के हो गया, कमरा है तो कमरे हो गया, जूता है तो जूते हो गया। उसी तरह अनमार्क्ड में जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, शहर है, घर है, कलम है, तो शहर शहर ही रहेगा, घर घर ही रहेगा, कलम कलम ही रहेगा। लेकिन इसके अपने ग्रामेटिकल एग्रीमेंट है कि आप शहर को एज ए सिंगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं या प्लूरल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये फेमिनिन नाउन है, तो ई से मार्क्ड है लड़की, मिठाई, रोटी। उसी तरह सिंगुलर मार्क्ड फेमिनिन नाउन ये हो जाता है लड़की से लड़कियां, मिठाई से मिठाइयाँ, रोटी से रोटियाँ। अनमार्क्ड फेमिनिन नाउन में वो ए हम जोड़ते हैं, जैसे औरत से औरतें, मेज से मेजें, किताब से किताबें। उसके बाद अब आप चलिए आगे हम बढ़ते हैं, पर्सन विद जेंडर एंड नंबर। वर्ब ऑल्सो एग्री विथ जेंडर। इन हिंदी एंड उर्दू द कंसेप्ट ऑफ पर्सन इज क्लोजली लिंक्ड विथ नंबर, whether it is singular or plural, जैसा कि मैंने बताया, and gender, masculine or feminine, and together these features determine the correct form of the verb in a sentence. So whenever the subject shifts from first person, from a speaker, to the second person, the addressee, or the third person, the someone or something being spoken about, so यहाँ पे एक चीज तो अब आपको क्लियर हो गया है कि जब हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं तो वी आर स्पीकिंग अबाउट द स्पीकर, जब हम सेकंड पर्सन बोलते हैं तो वी आर स्पीकिंग अबाउट एड्रेसी, और जब हम थर्ड पर्सन बोलते हैं तो समन और समथिंग बीइंग स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। एंड उसी के हिसाब से दैट वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंगली। वर्ब एंडिंग मस्ट ऑल्सो मैच द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट,
whether it is a singular or plural as well as the gender. मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल ए मेल स्पीकर इन द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर वुड से मैं खाता हूं, सो मैं इज मैस्कुलिन, सो वर्ब खाता एंड ऑक्सिलरी एग्री विद दैट, आई ईट, व्हाइल ए फीमेल स्पीकर वुड से मैं खाती हूं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि हाउ सब्जेक्ट गेटिंग एग्री विद द वर्ब। मैं खाती हूं, खा इज द रूट, टी हैज बीन एज्ड बिकॉज सब्जेक्ट इज फेमिनिन एंड हूं is auxiliary being used with मैं खाती हूं for feminine, मैं खाता हूं for masculine. In the plural, the verb transform into हम खाते हैं. So in the third person, gender differences are clearly marked, like वो गया is used for masculine subject, whereas वह गई is used for feminine subject. So subject and verb always agree in number and gender. This is the base line for this topic. So further changes occur in the plural form such as वे गए for masculine plural, वे गई nasalized for feminine plural. So this you can make a difference for singular and plural and verb agreement. Thus verb conjugation in Hindi Urdu is not determined by person alone but by the combined influence of person, number and gender, which together ensure grammatical precision and meaningful expression. So हम ये कह सकते हैं कि नंबर, जेंडर और पर्सन का एग्रीमेंट किसी भी मीनिंगफुल एक्सप्रेशंस के लिए हिंदी उर्दू में बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या होता है? इन हिंदी उर्दू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट and the object of a sentence refer to the same individual. अब एग्जाम्पल यहां देखेंगे, मैं खुद करूंगा, I will do it myself. So यहां पे देखिए मैं और खुद रेफरिंग टू द सेम पर्सन, उसने खुद यानी वह एंड खुद रेफरिंग टू द सेम पर्सन, उसने खुद लिखा, he she wrote it himself or herself, उसने खुद लिखा. When the subject and the object of the sentence refer to the same individual, we call it reflexive. It is very common in Hindi Urdu. कभी भी आप सुनेंगे तो हर मैं खुद अपना काम करूंगा, वो खुद गाड़ी चलाएगा, मैं खुद अपने से वहां जाऊंगा. तो these are all reflexive use. Although reflexive usage corresponds to the grammatical person, the reflexive pronouns apna is commonly applied uniformly across all persons. So apna is a common pronoun that used in every context. So importantly, this pronoun agrees with the number, gender and grammatical case of the noun it modifies, rather than changing according to the person of the subject. Thus, the selection of the reflexive pronoun depends on who is performing the action, whether it is the first, second or third person, while the actual form of the pronoun remains unchanged. So here the things to remember is it highlights personal involvement or possession. It clearly distinguishes between what belongs to the subject and what belongs to someone else. If you look at these two examples, it will become very clear. वो अपनी कार चला रहा है, he is driving his own car, so it's referring to the car belongs to that particular person. वह उसकी कार चला रहा है. If you look at this sentence, he is driving someone else's car, वो किसी और की कार चला रहा है. So it clearly distinguishes between what belongs to the subject and what belongs to someone else. The person in Hindi Urdu, the person of the subject, whether it is first, second or third, controls how the verb is conjugated. Example, मैं जाता हूं, the first person singular, तुम जाते हो, second person familiar or plural you can say, वो जाता है, third person singular. So मैं जाता हूं, I go, तुम जाते हो, you go, वो जाता है, he she goes. Shows number and gender agreement, like person helps verb agree with singular, plural and masculine, feminine forms,
which is essential for grammatical accuracy. So we know now by now कि verb का सब्जेक्ट के साथ एग्री करना ग्रामेटिकल कितना जरूरी है और टू कन्वे द करेक्ट एक्यूरेट मीनिंग. अब एग्जाम्पल देखें. इफ लुक एट दिस एग्जाम्पल, वो आया फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर, वह आई फॉर फेमिनिन सिंगुलर, वे आए फॉर masculine plural, and we I for feminine plural. So if you look at this, so it is the verb form is just aya. Let me write it I, or I can also be written like I, and I. So ये आया is for masculine singular, I for masculine plural, and I for feminine singular, and I here nasalized, same spelling with nasalization in Hindi Urdu, making it feminine plural. So this is how I, and I agree with the verb for singular masculine, for plural masculine, for singular feminine, for plural feminine. So this is how the verb works in Hindi Urdu with the subject. So if you look at this, वह आई feminine singular, वे आए masculine plural, वे आई feminine plural. So particularly in second person, the choice of pronoun and verb form indicates respect, familiarity, or intimacy. As I said earlier, if you look at two always referring to intimate relation, to whom you are either very close, very intimate, or love someone very much, like for your you have a smaller brother or sister, or you always referring to tu kahan tha, or to intimate also, so the closeness referring to God, you always say. तो इस तरह की चीजें हैं जो to referring to the intimate relation. Tum is very familiar, referring to a informal situation, and aap is very formal, very respectful. In our, so grammatically also they do agree with the verb accordingly. So this is how it works. Using the correct person avoids confusion about who is performing the action and ensures the message is understood clearly. So person is like first person, second person, third person, like he, she, it, or you, or I. These are the persons that it has to be clearly in Hindi Urdu mentioned, because degree of respect, degree of intimacy, it is very important in Hindi Urdu conversation, or in Hindi in our society, that reflects the respect, the hierarchy of respectfulness, or the degree of politeness, which is very important to mention. Person affect pronouns, sentence structure, and verb endings, which are crucial for forming meaningful and grammatical correct sentences. If you look at this, लड़कियां घर जा रही हैं. So लड़कियां is plural, so the auxiliary verb is nasalized है. Verb root remain as it is, और रहा, रहे, and रही agreeing with the subject. So रही is feminine, agree with the feminine, either both singular and plural subject. So ladkiyan is plural, so is rahi, and the auxiliary is nasalized, referring to the plural subject. So how the person affect pronouns, sentence structure, and verb ending in any Hindi Urdu sentence.